Hello and welcome you all in your history class. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a topic which is related to the Chola Empire in South India. In this topic we will discuss about the Chola Empire, its literary sources, their architectures. Okay, let me start the topic. The Chola Empire. As we know, it is ancient empire in the South India, were ruling with the two different or two more empires in the South India, that is Cheras and Pallavas. If you look the map of India, I have drawn here for you. There is a section, okay, which was ruled by the Chola Empire, and the southernmost part of the India, the South India, were ruled by the Pallavas, and the present time the Kerala. Okay, present time Kerala, the region was ruled by the Cheras. So it is a very ancient kingdom of Cholas. Okay, it is also mentioned in the Ashoka's inscriptions. So basically ये बहुत ही पुराना कह सकते हैं एंशियंट किंगडम है, और जिसका प्रमाण, ठीक है, जिसका इंस्क्रिप्शन में भी इसको मेंशन किया गया. आप जानते हैं अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें भी इसका वर्णन किया गया है, इसको डिस्क्राइब किया गया है, या यूं कह सके इसके बारे में मेंशन किया गया है. देन the second more important thing is it is also mentioned in the Indica of Megasthenes. Megasthenes जो बुक लिखी जो इंडिका, उसमें भी इस एम्पायर को मेंशन किया गया है. So it is the basic information about the Cholas. Okay, now who was the Cholas? अब ये Cholas थे कौन? So पल्लवास जो पहले से ही रूल कर रहे होते थे at that time, which were ruling in the southernmost part of the India. It is the part where the Pallavas were ruling, also in the south, the Sri Lanka. So Pallava यहाँ पर रूल कर रहे थे. तो at that time the Pallavas were the strong ruler and the capable rulers. Then who was Cholas? Cholas are the feudatories of Pallavas. जो चोलास थे वो पल्लवास के फ्यूडेटरीज थे. फ्यूडेटरीज का मतलब होता है जमींदार. उस समय जमींदारी का काम इनके यहाँ करते थे पल्लवास के यहाँ. देयर आफ्टर धीरे धीरे इन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया, और डोमिनेट करते करते पल्लवास को ओवरथ्रो किया. दे ओवरथ्रू द पल्लवास एंड गेट इनटू द एम्पायर एंड कैप्टिवेट ऑल द रीजन्स इंक्लूडिंग द पल्लवास रीजन, द साउदर्नमोस्ट टिप ऑफ द साउदर्न इंडिया, and these as well, they were also ruled by them. But also they were enclosed these sectors. Okay, here it is Kalinga. Look, here it is the Kalinga. Now after capturing these regions, they were gone for the upper side of the South India and conquered Kalinga. Okay, then Chola expanded their empires. Now Parantaka first in 902 AD 907 AD established the empire of the Chola. So he considered as the actual founder of the Chola empire, who was the grandson of Vijayalaya. ठीक है, विजयालया जो कि फ्यूडल थे, जो कि क्या थे, फ्यूडेटर थे. पल्लवास के टाइम में उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट किया. देन उन्हीं के जो ग्रैंडसन जिनका नाम है पारंतका फर्स्ट in 907 established and founded the new empire which is known as Chola empire. तो Chola empire हम उसी को कहते हैं. and he established his capital तंजौर, जिसको आप तंजौर आज बोलते हैं, तंजौर, उसी को पहले तंजौर कहा जाता था. तो उसको उन्होंने एस्टैब्लिश किया एज हिज कैपिटल सिटी ऑफ चोला डायनेस्टी और चोला एम्पायर. नाउ हाउ विल यू केम टू नो दैट? Okay, one thing is more. Now empire will be continued till about 1243 AD. ये empire 1000 या 1243 AD तक जाता है, established रहता है. Now what were the literary sources? वो कौन से सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है जिससे आप किसी भी हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं? अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है किसी डायनेस्टी, किसी एम्पायर के बारे में, अगर आपको पता लगाना हो तो आपके पास कौन कौन से सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होने जरूरी हैं. या यूं कहें, आपके जितने भी हिस्टोरियंस हैं, जो बुक राइटर्स हैं, वो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये क्या करते हैं? ये सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड करते हैं, पता लगाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको खोज करते हैं. ठीक है. देन द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी भी हिस्ट्री के बारे में अगर पता लगाना हो तो आपको बेसिकली उनके लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं? द बुक्स वर रिटन एट दैट टाइम.
किसी पार्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर जो किताब लिखी गई है वो होती है लिटरेरी सोर्सेज। वो उस समय भी लिखी जाती थी और आज भी लिखी जाती हैं। तो ये हो गया लिटरेरी सोर्सेज। एंड द सेकंड इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, आपने पढ़े होंगे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स अलग अलग डायनेस्टी और अलग अलग किंगडम के लोगों ने बनवाए। तो ये भी एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट द हिस्टोरियन टू राइट डाउन एंड टेक्स्ट इट इनटू द बुक। सो ये भी है। एंड द इंस्क्रिप्शंस, द मैन्युस्क्रिप्ट्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच गिव्स अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट कल्चरल, ट्रेडिशनल एंड फॉर द एम्पायर्स or the kingdoms. Now the sources of information about the Chola Empire. Now the literary sources. We will discuss the first literary sources, which is Kalingattu Parani. Look, Kalingattu Parani. What does it mean? Basically it is a Tamil word. ठीक है, Kalingattu Parani. तो कली इस वर्ड को ही देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? कलिंगा। क्या आया? कलिंगा। और कलिंगा कहाँ था? जस्ट अपसाइड टू द कांचीपुरम। ओके, तो वहां पर क्या आ रहा था? कलिंगा। अब कलिंगट्टू परानी यानी कलिंगा वार के संबंध में लिखी गई जो बुक थी उसी को नाम दिया गया कलिंगट्टू परानी। सो इट वाज कंपोज्ड बाय जयम कोंडर। ठीक है, ये इसको किसने लिखा? जयम कोंडर, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ कुलोटुंगा चोला फर्स्ट। कुलोटुंगा चोला फर्स्ट का जो पोएट था, जो कोर्ट पोएट था, जिसका नाम जयम कोंडर था, उसने कलिंगट्टू परानी नाम की एक बुक लिखी। बेसिकली बुक क्या? इट इज अ पोयम। ये एक पोयम है। एंड कौन सी पोयम है? ये एक तलिम पोयम है विच इज रिटन इन द तमिल लैंग्वेज एंड इन द फॉर्म ऑफ वर्स, द स्टैंजास। And it is composed in 2 lines. ये दो लाइन में कंपोज की गई है। And it's a war song. Actually, it is based on, this poem is a war song which is based on the war between the ruler at that time, that is Kulotunga Chola first, and Anant Varman, the ruler of Kalinga at that time, between the period of 1070 to 1122 AD. At that time the ruler was Kulotunga Chola first. तो उस समय का जो वॉर सॉन्ग है उसको पोएटिक लाइंस में कंट्रीब्यूशन देते हुए कंपोज किया किसने? जयम कोंडर, जो कि एक कोर्ट पोएट था। इसमें पूरी ब्रीफ ट्रेजेडी कह सकते हैं और इंसिडेंट कैसे कैसे हुआ, वॉर की टैक्टिक कौन कौन सी थी, और ये सारी की सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन इस बुक में या इस पोयम में मिलेगा। सो बेसिकली इट्स अ वॉर सॉन्ग। देन ऑल्सो दिस बुक, दैट इज कलिंगट्टू परानी, विल ऑल्सो मेंशन द ग्रेटनेस, द सुप्रीमेसी ऑफ द किंग। सो उस समय क्या होता था कि बेसिकली जो किंग होता था उसको भगवान का दर्जा दिया जाता था। रूलर यानी किंग यानी भगवान। सो उसकी सुप्रीमेसी को पूरी तरीके से इसमें शो किया जाता था, मेंशन किया जाता था, डिस्क्राइब किया जाता था, एज वेल एज द मिलिट्री expeditions, the military actions, and the birth of the ruler, his family, and the supremacy, his administration, the war tactics and strategies. These were all mentioned in these kind of books. So the one example of the literary sources is Kalingattu Parani, which was composed by that person, that is Jayam Kondar, and it's a war song written in the verses, and so many stanzas are there, thousands of stanzas are there, okay, which describes the poetic as well as the greatness of the king, his birth, families, and the victories and the supremacies of the kingdom or the ruler at that time. So if we move forward and look into the Tirumarais, which is also a literary source. Actually Tirumarais is the composed book or the collection of the poems in it, which was composed by some group of peoples, and these group of peoples are divided into 2 groups, that was the Nayanars and Alvars. We have also learned about them. The Nayanars, which was the डिवोटी ऑफ शिवास, जो शिव की पूजा करते थे, शिव को मानने वाले थे, उनको नयनार्स कहा जाता था। एंड द अदर ग्रुप ऑफ पीपल आर द अलवर्स, व्हिच वाज द डिवोटीज ऑफ भगवान और द लॉर्ड विष्णु।
ठीक है, भगवान विष्णु को मानने वाले अलवर्स थे। तो these the Tirumalais are the collection of numerous poems. The thousands of poems were written by these groups of peoples in that ancient period of South India, the Cholas Empire. Now the Ramavataram. Ramavataram is also a book at that time, written at that time. It is composed as the तमिल रामायणा। इसको हम तमिल रामायणा में, जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी इन संस्कृत वर्ड्स, उसी को कंपोस्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया इनटू द तमिल लैंग्वेज बाय द नेम कंबन। ओके, कंबन, जिनको हम नला वेम्बा के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने उसको तमिल वर्सेस में चेंज किया उन संस्कृत टेक्स्ट को, एंड तमिल में चेंज करने के बाद उसका नाम आता है रामावतारम। तो इस बुक में भी उनका वर्णन किया गया है। सो द अदर बुक्स at that period of time, the other books were also composed. The first one is Yape Rungalam, and the second one is Yepru Galak, Yapri Angulak, the Yeprungalak. These are the two books which was composed by Amrit Sagara at the ancient time. These books described about the king of the Cholas in their administrations, their management, and the warfare strategies. Now the other book is Virasolium, which was composed by Buddha Mitra. So these are the literary sources which gives the different informations about the different rulers in the Cholas Empire, their dynasties, their supremacy, and their warfare knowledge and traditional customs. So if you talk about the archaeological sources at that time, the first source is the inscriptions. Now the inscriptions are the main source for the ancient empire or the ancient history. About the Chola Empire, the pillars of Ashoka gives the valuable information by their inscriptions. Ashoka was the Mauryan emperor at that time, and the copper plates are the feminine or the most important inscriptive works at that time, which gives a lots of information about the Cholas dynasty. The first one, the anvil inscription. The word anvil, inscriptions of the Sundara Chola, the ruler Sundara Chola at that time gives the information informed by the anvil inscription. Now what is the word anvil? Actually anvil is the village which is outskirt of Tiruchirappalli, which is outskirt of the city Tiruchirappalli. Okay, so anvil एक छोटा सा गांव है, वहां पर जो inscriptions मिले हैं वो सुंदरा चोला के बारे में बताते हैं, आपको ब्रीफ करते हैं। नाउ द कन्याकुमारी इंस्क्रिप्शंस व्हिच इज अबाउट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द राजेंद्र चोला एंड अबाउट द फैमिली ट्री। सो इट इज द ओनली इट इज द प्लेट व्हिच गिव्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द फैमिली ट्री ऑफ चोला एम्परर्स। नाउ द थर्ड वन इज द तिरुचिपल्ली इंस्क्रिप्शंस। तिरुचिपल्ली इंस्क्रिप्शंस यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो कहां पर पाए जा रहे हैं वो तिरुचिपल्ली। एनविल इंस्क्रिप्शन जो एनविल में पाया गया, कन्याकुमारी इंस्क्रिप्शंस जो कन्याकुमारी में पाए गए। सो द तिरुचिपल्ली इंस्क्रिप्शंस गिव द डायनेस्टी ऑफ द फ्यूडल चीफ्स। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूडल चीफ्स, द डायनेस्टी sorry, what was the occupation of the feudals at that time. Actually whenever the inscription these inscriptions give the information at the period when the Pallavas were ruling at the South India, in the South India, जब पल्लवास रूल कर रहे थे उस समय की जानकारी ये देते हैं। तो उस समय चोलास की स्थिति क्या थी? वो फ्यूडेटरीज थे यानी फ्यूडल्स थे, यानी कि जमींदार थे, किसके? पल्लवास के थे। ठीक है, देन ये डायनेस्टी बताता है कि उस समय फ्यूडल सिस्टम क्या था और फ्यूडल जो चीफ्स थे जिनको हम चोला कहते हैं उनकी स्थिति क्या थी, किस तरीके से वो डोमिनेट करते हैं और अपने आप को पावर में लाते हैं। नाउ द पावरफुल सिंस पारंतका फर्स्ट, तो व्हेनेवर द टाइम केम्स द पारंतका फर्स्ट व्हिच वाज द रियल फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी, तो पारंतका फर्स्ट के आते आते ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इतने पावरफुल हो जाते हैं कि अपने आप को फ्यूडल सिस्टम ही नहीं, फ्यूडल चीफ से ही नहीं बल्कि एक एम्परर के तौर पर देखने की ख्वाहिश रखते हैं। देयर आफ्टर दे ओवरथ्रू द पल्लवास फ्रॉम देयर थ्रोन्स एंड captivated the all thrones and the dynasties of Pallavas and including it in their
टेरिटरीज, द चोलास टेरिटरीज, इसीलिए इनको इंपीरियल चोलास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपीरियल चोलास। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवरथ्रू किया और ओवरथ्रू करने के बाद खुद ही उस सत्ता पर बैठे और इसीलिए इनको इंपीरियल चोलास भी कहा जाता है। नाउ इट शोज, दिस इंस्क्रिप्शन शोज हाउ दे ओवरथ्रू पल्लवास, देयर मिलिट्री टैक्टिक्स, और जो उनकी स्ट्रेटजी थी वारफेयर की वो बहुत ही बेहतरीन थी, जिसकी वजह से उन्होंने ओवरथ्रू किया पल्लवास को और डोमिनेट किया और इस्टेब्लिश किया चोला एम्पायर। नाउ द चिंगलपुट इंस्क्रिप्शन, इस सारे की चिंगलपुट और तिरुचिपल्ली ये सब तमिलनाडु में हैं। नाउ द चिंगलपुट इंस्क्रिप्शन, नाउ अकाउंट ऑफ राजाधिराज चोला फर्स्ट, दिस इंस्क्रिप्शन, द चिंगलपुट inscriptions gives the detailed account of Rajadhiraj Chola first, their rule, their authority, the administration, their leadership and the palaces, their achievements, the warfares, their wars. The main theme of Chingalput inscription is which it shows Rajadhiraj is giving 8 villages to their 330 scholars wherever he was went for a war. जब एक वॉर के लिए वो जा रहे थे तो अपने स्कॉलर्स को 8 विलेजेस को देते हुए इसमें स्क्रिप्ट किया गया है, दिखाया गया है, ऐसा शो किया गया है। ऐसा शो करने के बाद ये बताता है कि एट दैट टाइम उनके यहाँ पर ये डोनेशन की प्रक्रिया चलती थी स्कॉलर्स को, साथ ही साथ में रिलीजियस एक्टिविटीज भी हुआ करती थी। तो ये जो चिंगलपुट इंस्क्रिप्शन है ये आपको डिटेल्ड अकाउंट देता है, न केवल पॉलिटिक्स, न केवल सोसाइटी, द एडमिनिस्ट्रेशन, द सुप्रीमेसी एंड द लीडरशिप एंड ऑल्सो द रिलीजियस एक्टिविटीज। सो डिटेल्स ऑफ लैंड रिकॉर्डेड इन प्लेट्स। सो बेसिकली क्या होता था कि जो इंस्क्रिप्शन कहां पर किया जाता था, चोलास के पीरियड में कॉपर प्लेट्स में किया जाता था। तो वो कॉपर प्लेट्स में इस खास तौर से चिंगलपुट इंस्क्रिप्शन में पूरी तरीके से जितनी भी लैंड प्रोवाइड की जाती थी, जितनी भी लैंड डोनेट की जाती थी, उसको यहाँ पर इंस्क्रिप्ट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि दे आर द फ्यूडल्स, तो जमींदार तो वैसे भी थे, तो उनका काम ही था किसी भी लिए हुए, रिसीव किए हुए या डोनेट किए हुए लैंड को रिकॉर्ड करना। ये कह सकते हैं उनका सबसे एमिनेंट वर्क था, एफिशिएंट वर्क था। नाउ द बृहदेश्वर टेम्पल। So in the terms of Cholas, if we discussing about the Cholas, the one temple which is the Brihadeshwar temple is more important. As per your syllabus as well, there would be a one question about related to the Brihadeshwar temple, its structure, its interior, its exterior and the type of archaeology. Now the Brihadeshwar temple is belongs to or related to the Raj Raja of the Chola emperor. इसमें राज राजा के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। राज राजा के डिवोशन को बेसिकली इसमें शो किया गया है कि कितना वो रिलीजियस था एंड हाउ ही वाज रिलीजियस एंड डोनेटिंग द लैंड्स एंड द अदर थिंग्स। सो उसके डिवोशन को इसमें शो किया गया है। इसमें शो क्या किया गया है, इसके दीवारों पर इसमें इंस्क्रिप्ट क्या किया गया है कि ऐसा शो किया गया है कि 48 काउज को रिसीव किया, उसमें ऐसा शो कर रहा है कि वो 48 काउस को रिसीव कर रहा है। अब क्यों रिसीव कर रहा है, क्योंकि बृहदेश्वर टेम्पल जो कि भगवान शिव, लॉर्ड शिव का टेम्पल है, और भी उसमें छोटे छोटे और भी श्राइन्स हैं, बट मेनली इट इज द लॉर्ड शिवाज टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल। तो उसमें 48 काउस को रिसीव कर रहे हैं वो। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन काउस के दूध से क्या बनाना है, घी, और वो जो घी है वो किस लिए यूज किया जाएगा, फॉर द लैंपिंग और गिव द लैम्प इन द टेम्पल। तो टेम्पल में जो डाइटीज है, जो श्राइन्स है, उसमें दिए जलाने के लिए उस काऊ के घी का यूज किया जा रहा है। तो उसमें उसके डिवोशन को शो किया जा रहा है कि वो कितना डिवोटी था और कितनी रिलीजियस एक्टिविटीज भी की जाती थी। एज वेल एज इज ऑल्सो गिव द ब्रीफ
introduction or the script about the information about the different festivals were taking place. जैसे दिवाली हो गया, दिवाली was the main festival at that time, तो उस समय दिवाली हो गया, शिवरात्रि हो गया, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से मनाया जाता था और इन चीज़ों में खास तौर से रिलीजियस एक्टिविटीज करवाई जाती थी चोला एम्परर्स के थ्रू, जिसमें उसके डिवोशन और रिलीजन को भी देखा जाता था, एक्टिविटीज को भी देखा जा सकता था। नाउ द चंदेश्वर टेम्पल, चंदेश्वर टेम्पल मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप ऐसे ही समझिए। तो चंदेश्वर टेम्पल इज ऑल्सो गिव्स द इंस्क्रिप्शंस ऑफ राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला के बारे में इसके दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है अबाउट द राजेंद्र चोला द चंदेश्वर टेम्पल। और इसमें सबसे मेन थीम क्या है? इसमें मेन थीम क्या है कि जब ये आपका राजेंद्र चोला जो थे, जब वो श्रीलंका को डोमिनेट करने जाते हैं, उसको जब कंक्वर करने जाते हैं, तो उस टाइम के फेस को, उस इंसिडेंट को इसमें शो किया जाता है, डिस्क्राइब्ड किया जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंस्क्रिप्शन। बट वन पॉइंट इज मोर कि ये इंस्क्रिप्शन किसमें किए जाते थे? आई हैव टॉट यू अर्लियर दैट they were using mainly the copper plates। तो कॉपर प्लेट्स उनका मुख्य स्रोत होता था जिसमें वो इसको इंस्क्राइब करते थे। अब ये कॉपर प्लेट्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक कॉपर प्लेट्स को वो आपस में अरेंज करते थे और उसको एक कॉपर रिंग से बांध देते थे, टाई कर देते थे, सच दैट अब वो कॉपर रिंग जो थी उसके ऊपर एक सील लगा देते थे और उस सील में मेंशन किया जाता था, एक तरफ शेर रहता था और दूसरी तरफ फिशेस रहती थी और वो आपस में एक दूसरे के फेस टू फेस ऐसे एक दूसरे को देखते थे। उस सील में कुछ ऐसा शो किया जाता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट निशानी थी, एविडेंस था चोलास एम्पायर्स के लिए, उसके इंस्क्रिप्शंस के लिए। बेसिकली दे वर यूजिंग द कॉपर प्लेट्स फॉर द इंस्क्रिप्शंस एंड द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस। ओके नाउ इन द अर्लियर टर्म्स, अभी एक और चीज मैं बता दूं कि बेसिकली 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी प्लेटें होती थी, एक के बाद एक। बट रिसेंटली इन 1905 द प्लेस विच इज थिरुवलंगुड नाम का एक जगह है जहां पे कॉपर प्लेट्स डिस्कवर की गई 1905 में, और अब तक की सबसे ज्यादा कॉपर प्लेट्स वहां पर मिली एक ही कॉपर रिंग में। There were 31 copper plates were found after it discovering in 1905 in थिरुवलंगुड। मैं नाम जगह बता दे रहा हूं, थिरुवलंगुड। एक्चुअली वी आर द नॉर्थ इंडियंस और कुछ साउथ इंडियंस नाम जो कि तमिल में है उसको लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो डोंट माइंड इट। सो द थिरुवलंगुड, इट इज द प्लेस वेयर द 31 copper sheets were discovered in 1905, which gives the huge details about the Chola Empire. Now if you talk about the Brihadeshwar temple, which is an important archaeological site during the Chola Empire, which was built or constructed during the Chola Empire, gives the lots of information about them. Now one question is put from this topic in your boards, that with reference to the Brihadeshwar temple, discuss the gateway, structure of main temple and the interior of the temple। तो आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बनता है कि विद रेफरेंस ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल को रेफरेंस लेते हुए आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, उसके गेटवे के बारे में बताना है और इंटीरियर के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ द बृहदेश्वर टेम्पल इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु। मेनली द बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन तंजौर, जो कि चोला एम्पायर की राजधानी थी, कैपिटल सिटी थी, जिसको आज हम थंजौर के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु। ओके, नाउ इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो मेनली ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। साथ में इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है तो इसीलिए इसको बचाना भी जरूरी है, इसीलिए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया। नाउ इट इज ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ तमिल आर्किटेक्चर। ये एक तमिल आर्किटेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। साथ में ये इंपॉर्टेंट रखना है कि इट इज स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट इन
1003 AD during the period of Rajaraja and completed within 8 years in 1010 AD. 1010 AD में ये बनकर तैयार हो जाता है and mainly it is a finest example of Dravidian art and archaeology. Now if we talk about the gateway, okay, it is the basic information about the बृहदेश्वर टेम्पल. इफ यू टॉक अबाउट द गेटवे, देन जैसे ही आप किसी मंदिर में श्राइन के लिए एंटर करते हैं तो उसमें मुख्य उसका गेटवे होता है. इंडियन मेथोडोलॉजी में कहा गया है कि जो गेटवे में होता है उनके द्वारपाल्स होते हैं. द्वारपाल्स क्या करते हैं कि गेट की रक्षा करते हैं. तो ये जो स्कल्पचर्स हैं, जो गेटवे, जो गार्डियंस हैं, ये उसकी रक्षा करते हैं और बेसिकली उसकी भव्यता को दिखाने के लिए इसको बहुत ही ह्यूज बनाया जाता है, बहुत ही बड़ा बनाया जाता है. सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट हैज 2 गेटवेज. इसके 2 गेटवेज हैं विथ पिरामिडिकल टावर. उसके पिरामिडिकल यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए पिरामिडिकल टावर के तौर पर इसके गेटवेज हैं. कितने? 2 गेटवेज हैं. नाउ इट इज वॉल्टेड रूफ. वॉल्टेड रूफ का मतलब क्या होता है? वॉल्टेड का मतलब होता है गुंबदाकार. गुंबद आपको पता है ना, ऐसे होता है गुंबद. तो गुंबदाकार रूफ है. इसके जो रूफ है वो वॉल्टेड रूफ है. और साथ में द स्कल्पचर्स आर ऑन अपर स्टोरीज. तो स्कल्पचर्स जो अपर स्टोरीज में है, तो जैसे ही आप चढ़ेंगे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, गेटवे है, जैसे आप स्टेयर्स पे चढ़ेंगे वैसे ही आपको ऊपर वाली स्टोरी पे ये आपके स्कल्पचर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही बड़े बड़े हैं. साथ में ह्यूज गार्डियंस, बहुत ही जो उसके गार्डियंस है, फिगर्स, ये उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं गेट की. तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, इंडियंस में जो हिंदू से बिलोंग करते हैं उनको ये पता होगा कि जहाँ भी लॉर्ड शिवा का टेम्पल है वहां पर नंदी एज अ गार्डियन होते हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. बट इन दिस केस दे हैव द 2 टावर्स टू आइदर साइड्स एंड प्रोटेक्टेड बाय द गेट बाय द 2 गार्डियंस व्हिच फिगर्स अपस्टेयर्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, हाउ its structure gives up. Now it is finally made up by the granite structure. ये एक पूरा का पूरा ग्रेनाइट पत्थर से बना है, ग्रेनाइट स्ट्रक्चर है. and it has a विमान tower about the sanctum is tallest in South India. तो इसका जो विमान टावर है, और विमान टावर क्या होता है आपको पता होगा. जैसे मंदिर है आपका, ये मंदिर है, तो इंडियन मेथोडोलॉजी में मंदिर लगभग ऐसे बनता है. तो विमान टावर ऐसे बनता है, ऐसे कुछ ऐसे भी बनते हैं द्रविडियन स्टाइल में. तो मान लीजिए विमान टावर है. विमान टावर का मतलब ये सैंक्टम. सैंक्टम का मतलब होता है गर्भगृह, हिंदी में बोलते हैं गर्भगृह. और सैंक्टम का मतलब क्या होता है? सैंक्टम बिलोंग्स टू वेयर द डाइटीज और द श्राइन्स वेयर पुट ऑफ. जहाँ पे डाइटीज या भगवान की मूर्ति को, लॉर्ड की मूर्ति को रखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं गर्भगृह. तो सैंक्टम के ऊपर जस्ट ये सैंक्टम है, यहाँ पे भगवान की मूर्ति, और उन्हीं के ऊपर क्या होता है? विमान होता है. क्या होता है? विमान. और उसी विमान टावर को बोला गया कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर का जो विमान टावर है above the sanctum is the tallest in the South India. So कहाँ पे थे हम? The massive colonnaded प्रकारा. कोलोनेडेड प्रकारा यानी कि कॉरिडोर. कोलोनेडेड प्रकारा यानी कॉरिडोर. तो इसके जो कॉरिडोर है वो बहुत ही मैसिव है. ठीक है. अब होता क्या है कि द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है? मंदिर तो बीच में होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? कॉरिडोर्स होते हैं. और कॉरिडोर्स यहाँ पर क्या होता है? एंट्रेंस होता है. तो यहाँ से एंट्रेंस किया और चारों तरफ कॉरिडोर्स हो गए और बीच में सैंक्टम होता है. बीच में क्या होता है? गर्भगृह होता है. मेन आपका मंदिर का स्ट्रक्चर होता है. नाउ इट हैज द लार्जेस्ट शिवलिंग. वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बृहदेश्वर टेम्पल इज इट हैज द लार्जेस्ट शिवलिंग. लार्जेस्ट शिवलिंग है इसमें, जो कितना है? 4 मीटर ऑफ टॉल है, जिसकी ऊंचाई 13 फीट है. कैन यू अज्यूम? The 13 feet of Shivalinga, that is the 4 meters of Shivalinga, which is the tallest in the India, one of the tallest Shivalingas in India, and it is purely composed by the as the Dravidian style of architecture. और इसका जो प्लानिंग है वो लगभग स्क्वायर प्लानिंग है. तो पूरा का पूरा जो मंदिर का परिसर है वो स्क्वायर प्लान्ड है एंड अलाइंड ईस्ट वेस्ट एक्सिस. तो उसके जो 2 द्वार हैं, एक ईस्ट और एक वेस्ट. ओके, एक ईस्ट में द्वार है, एक वेस्ट पे. तो आपके ये ईस्ट वेस्ट एक्सिस ऑफ अलाइनेशन में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है.
नाउ इट्स हैज अ कोर्ट यार्ड। अब यहाँ पे बात रखिए कि कोर्ट यार्ड कितना बड़ा है भाई। तो कोर्ट यार्ड विच इज 560 by 320 feet which is equal to 170 by 98 मीटर इसका कोर्ट यार्ड है। कैन यू अज्यूम भाई 170 मीटर लंबा और 98 मीटर चौड़ा। वाह। नाउ द सैंक्टम, अगर गर्भगृह की बात करें तो 100 स्क्वायर फीट सैंक्टम यानी 9.3 मीटर स्क्वायर के एरिया में इसका सैंक्टम फैला हुआ है, गर्भगृह फैला है, जहां पर मूर्ति है या जहां पर शिवलिंग है। नाउ द गोपुरम टावर, ओके, और इसका एक गोपुरम टावर भी है, मेंशन करना है आपको इसके आंसर में। नाउ सम मोर फैक्ट अबाउट इट दैट इट हैज सम स्मॉलर श्राइन्स एज वेल अलोंग विद द शिवलिंगास। तो उसमें कौन सा नंदी मंडपा आएगा, ओके, नंदी मंडपा, अलंकार मंडपा, अर्ध मंडपा, मुखा मंडपा और महामंडपा, ये सारे छोटे छोटे मंदिर भी इस पूरे के पूरे मंदिर परिसर कॉरिडोर्स के बीच में है। एंड द द्वारपाल्स द गार्डियंस, जिसकी फीट, इनके जो द्वारपाल हैं, जो गार्डियंस है, उनकी जो ऊंचाई है वो हाइट है 6 फीट। जो गार्ड कर रहे हैं गेटवे को उनकी ऊंचाई 6 फीट है, लगभग 1.8 मीटर टॉल के। और इमेज जो है किसी भी मंदिर में, आप शिव जी के मंदिर में एंट्री करेंगे तो वहां पर नंदी मंडपा होगा पहले ही वहां पे कोर्ट यार्ड्स में। और ऑल्सो द 9 प्लेनेटरी डाइटीज यानी कि नवग्रह जिनको बोला जाता है उनको भी वहां पर स्टैब्लिश किया गया है। So it is all about the Brihadeshwar temple. You have to write the answer. Okay, quote down one question about it. That with reference to the Brihadeshwar temple, describe the gateway, the structure of main temple and the interior of the temple. अगर हम interior of the temple की बात कर लेते हैं तो पहली बात तो ये चारों ओर मोटी मोटी दीवारों से, जो कि ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी है, उससे घिरा हुआ है। साथ साथ में इसके 2 गेटवे मैंने आपको बता दिए। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द फाइन कार्विंग इज देयर इन इट्स बेसमेंट, शोज द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड द गॉडेस पार्वती। तो शिव और पार्वती की मैरिज का पूरा इंसिडेंस इसके आपके पाववेज में, बेसमेंट में बनाया गया है, चारों तरफ ग्रेनाइट के पत्थरों में उसको शो किया गया है। इट इज ऑल्सो provides the information about the social, economical, the political, the religious and different activities were going in that period. So कहीं ना कहीं ये जो टेम्पल है ये ना केवल उस समय की पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, रिचुअल्स, रिलीजियंस, ट्रेडिशंस और कल्चर को दिखाता है, आर्ट एंड आर्कियोलॉजी को दिखाता है, और कहीं ना कहीं आज के लोगों में ये बहुत ही बड़ा रिलीजियस परफेक्ट भी है। So dear students, it is all about today's session in our video which was related to the Chola Empire. We will be discussing about some more about this chapter about the Cholas, the different rulers in Chola period. I'll be coming back with a new topic. Till then, take care and